खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम नीरज अत्री जी के कुछ सवालों का रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं और साथ में उनसे पूछने जा रहे हैं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वेदों से। तो चलें, तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नीरज अत्री जी की खुद की बातों में। नवजीत सिंह जी कह रहे हैं लोग अपने किड्स को मिशनरी स्कूल में भेजना छोड़ें। जी हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को स्कूल में भेजना ही बंद कर देना चाहिए। वो मिशनरी है या कोई भी स्कूल है, सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। जो अभी आपने बात बोली ना, धरती को गोल होने वाली, मेरा बेटा अभी 3rd क्लास में है। तो आज के दिन के वो ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो पढ़ रहा था कि धरती गोल है, ये कैसे प्रूव हुआ। वो किसी एक क्रिश्चियन का नाम। तो जैसा आपने देखा, एक जगह नीरज अत्री जी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें और दूसरी जगह अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 3री क्लास में पढ़वा रहे हैं और भी बहुत सारी बातें। मेरे को आशा है कि इसका जवाब नीरज अत्री जी या उनके प्रिय जन जरूर देंगे। चलें, ज्यादा देर न करते हुए सवालों की ओर चलते हैं। Second problem arises regarding the genealogy of Jesus Christ or the ancestors of Jesus Christ. Once again, the Gospels of Mark and John do not give us any information regarding genealogy of Jesus Christ. The other two documents, which are Matthew and Luke, they do give us information. In fact, it is Luke which is most detailed regarding genealogy of Jesus Christ. It goes from Adam up to Jesus Christ. It gives all the intervening generations in a sequence. Whereas if we look at Matthew, it starts only from Abraham. Now, since before Abraham there cannot be any comparison, so we will try to compare both these Gospels starting from Abraham itself. Now, if we compare these two lists, there are 39 generations between Abraham and Jesus when we look into Matthew's. Whereas if we look into Luke, there are 55 generations between Abraham and Jesus. And this difference becomes more pronounced if we compare the difference between the names which appear from David to Jesus. In Matthew's there are only 27 generations, whereas there are 42 generations when we look at Luke, starting from David and going up to Jesus Christ. And in only 4 of these cases, the names which appear in Luke are common with Matthew. Others are either completely different or their spellings are different. Now, what is clear from this is that whoever was writing Bible did not notice the large discrepancy between the number of generations which are present in one gospel as compared to the number of generations present in the second gospel. Which means that either there has been a very large printing mistake by the biblical God, or this Bible has been composed by a large number of people who tried to create a new religion out of nowhere. In fact, if we compare the name of the grandfather of Jesus Christ in Matthew and Luke, they are different. One says it is Heli, the other says it is Jacob. So how do we reconcile this divine mismatch? I don't know. But what I am sure of is that next time इन चारों गॉस्पेल्स में जो जीसस क्राइस्ट के बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं वो आपस में मैच नहीं करती। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट का दादा कौन था वो नाम भी मैच नहीं करता है। अब क्लेम इनका ये है कि जो गॉड है, जो बाइबल का गॉड है, इसमें आप परमात्मा, ईश्वर या भगवान की बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाइबल का गॉड बिल्कुल अलग है इनसे। तो गॉड ने ये जो चारों चेले थे इनको प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से ये किताबें लिखी गई हैं, इसलिए इनमें 1% या एक शब्द भी झूठ नहीं है। अब हम इनको पढ़ के देखते हैं कि क्या बताती हैं हमें जीसस क्राइस्ट के पूर्वजों के बारे में। सबसे पहले देखिए मैथ्यूज या मत्ती, उसमें जब आप देखते हैं तो एक ऐसा माना जाता है कि एक और पैगंबर था जिसका नाम अब्राहम था। तो अब्राहम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक आने में मत्ती में 39 पूर्वजों का उल्लेख देखने को मिलता है। और जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसका मैं 16 नंबर पढ़ के बता रहा हूँ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था, मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाया। यानी याकूब का बेटा यूसुफ और यूसुफ का बेटा यीशु।
दैट मीन्स जो यीशु का दादा है उसका नाम याकूब है, मैथ्यूज या मत्ती के अनुसार। अब हम अगले गॉस्पेल पे चलते हैं। अब जो अगला गॉस्पेल है मार्क या मरकुस, उसमें जीसस क्राइस्ट के पूर्वजों के बारे में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तीसरा गॉस्पेल लूका, इसमें उसी अब्राहम पैगंबर से लेके जीसस क्राइस्ट के पहुंचने तक 52 पूर्वजों का उल्लेख मिलता है। अब ये जो बाइबल का गॉड है उससे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क इन दोनों गॉस्पेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और अब इसमें फिर से अगर हम देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट के दादा का नाम क्या है तो उस पर ध्यान दीजिए ज़रा। यीशु ने जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो वह स्वयं लगभग 30 वर्ष का था। ऐसा सोचा गया कि वह एली के बेटे यूसुफ का पुत्र था। तो यहाँ पर जो यूसुफ है यानी जो जीसस क्राइस्ट का बाप है, उसके बाप का नाम एली है, जो वहाँ पर जेकब था या याकूब था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो चेले जो जीसस क्राइस्ट के साथ हमेशा घूमा करते थे, उनके साथ रहते थे और गॉड की प्रेरणा से लिखा है, उनसे इतनी भयंकर गलती हो गई कि दादा का नाम ही मैच नहीं करता है। और जो चौथा गॉस्पेल है, अब ज़रा उस पर चलते हैं, जॉन या यूहन्ना, इसमें पूर्वजों का कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही फिर ये जो मिशनरी हैं उनके द्वारा डेविड के नाम को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। तो जब आप वहाँ भी देखेंगे तो जो मैथ्यूज़ है उसमें डेविड से लेके जीसस तक 27 पूर्वज आते हैं, लेकिन जब आप ल्यूक में देखते हैं तो डेविड से लेकर जीसस तक 42 पूर्वज आ जाते हैं। और इनको भी ज़रा आगे चल के देखें। अब 4 में से 2 गॉस्पेल्स तो कोई पूर्वजों के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, और जो 2 बता रहे हैं अब ज़रा उनको हम चेक करके देखते हैं कि उनमें नाम मैच करते हैं या नहीं। जब हम मैथ्यू और ल्यूक के नाम आमने सामने रखते हैं तो हम ये पाएंगे कि पहले 6 नाम मैच करते हैं, लेकिन उसके बाद नाम बदलने शुरू हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। और जब उससे आगे चलते हैं तो नाम भी आपस में मैच करने बंद हो जाते हैं। और एंड तक आते आते जो मैथ्यूज़ है उसमें तो यीशु आ गया, लेकिन दूसरे में क्योंकि ज़्यादा पूर्वज हैं तो वो लिस्ट इससे कहीं ज़्यादा लंबी है। तो ल्यूक में जब आप चलते जाएंगे तो अभी तक आपको कहीं पर यीशु नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ एंड में आके यीशु मिलते हैं। अब यहाँ खास बात क्या है, मैथ्यू में जीसस और डेविड में आने वाले 26 नामों में से केवल 4 ऐसे हैं जो ल्यूक में मिलते हैं। 3 ऐसे हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मिलते जुलते से हैं। और जो नाम इनमें आपस में मिलते भी हैं उनका सीक्वेंस या उनका क्रम आपस में मैच नहीं करता है। सबसे पहला सवाल जो नीरजत्री जी ने उठाया जीनोलॉजी के ऊपर कि मैथ्यू और मार्क की जीनोलॉजी में बहुत फ़र्क है। ये सवाल कॉमन सवाल है जब हम पढ़ते हैं बाइबल को फर्स्ट टाइम या ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसकी हकीकत जानते हैं तो हमें पता चलता है देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन। देखें कैसे मैथ्यू ने जोसेफ की जीनियोलॉजी को लिखा है और लूक ने मरियम की जीनियोलॉजी को लिखा है। हाँ, अब एक क्वेश्चन उठता है कि लूक ने फिर जोसेफ को क्यों मेंशन करा। अच्छा सवाल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि जो लूक था वो स्ट्रिक्ट हिब्रू ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, जिसमें खाली मैंस को, जो मेल्स होते हैं, उनको मेंशन करा जाता है जीनियोलॉजी के अंदर। आई होप ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसका जवाब कोई भी संडे स्कूल का बच्चा दे सकता है। चलें नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट 2 सवालों को एक ही साथ टारगेट करना चाहूँगा, एक ही साथ आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले आप उन सवालों को देखें। And in this episode, we are going to learn about the discrepancy regarding the place where Jesus Christ had taken birth, if there ever was a Jesus Christ. Now, let us look at all the 4 Gospels. The first Gospel, Matthew, says that the birth of Jesus Christ took place at Bethlehem.
The second gospel, which is Mark, tells us that the birth of Jesus Christ was at Nazareth. The third, which is Luke, tells us that Jesus Christ took birth in Bethlehem, whereas the fourth, which is John, tells us that it was not Bethlehem where Jesus Christ had taken birth. So again, something as basic as the place where Jesus Christ would have taken birth has different answers from different gospels. Now, on what basis have we arrived at these four results? Let me show them to you one by one. The second chapter of Matthew is very clear because it starts with the line. It says, "Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of the Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem." Here there is no confusion regarding the place. They are saying it is Bethlehem. Now let us look at Mark. The sixth chapter of Mark is, the title is Jesus rejected at Nazareth. Then when he went out from there and came to his own country, that means he has gone to Nazareth where he has been rejected. Therefore, Mark tells us that Jesus Christ had taken birth in Nazareth. Then the second chapter of Luke tells us regarding the place of birth of Jesus Christ. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea to the city of David, which is called Bethlehem. So here again it says the birth of this alleged Jesus Christ took place in Bethlehem. In John, there is one place where there is a discussion going on among different people regarding the place of Jesus Christ. Let us go through this portion. Therefore, many from the crowd, when they heard this saying, said, "Truly this is the prophet." Others said, "This is the Christ." But some said, "Will the Christ come out of Galilee? Has not the scripture said that the Christ comes from the seed of David and from the town of Bethlehem where David was?" So here the discussion is that this person is not from Bethlehem, therefore he cannot be accepted as a prophet or the so-called prophesied king. And as a result, the discussion keeps on continuing for a pretty long time, and the impression that is received by the reader is that Jesus Christ did not take birth in Bethlehem. Okay, apart from this discrepancy regarding the place of birth, there is a very large discrepancy between the narratives which have been put forward regarding the events subsequent to birth of Jesus Christ. Now here again Matthew and Luke give a detailed description, whereas Mark and John are almost silent regarding these facets. So let us look at these two documents which give us some information regarding the events after the birth of Jesus Christ. The narrative present in Matthew is very dramatic. According to this narrative, when the alleged Jesus Christ took birth, 3 wise men came from the east. They met the king Herod and told him that as prophesied in the holy scriptures, the child has taken birth and this child is going to become the king of Israel and the adjoining region. Now since Herod was a king, he became jealous. He wanted to kill this child so that his kingship remains. Therefore, he talked to the wise men and asked them to find out where the child has taken birth so that he can also worship this newly born child. The 3 wise men go out. They try to find out and locate the actual place where Jesus Christ had taken birth, and there they worship this child, they give their presents, and then they had seen this particular dream in which they were warned that they should not tell about the birth of the child to the king Herod. Therefore, they take a different route to go to their country. Now, when the king Herod finds out that he has been deceived by the 3 wise men, then he sends out his people to kill all those children who had taken birth within a period of 2 years. All the boys were to be killed so that the infant Jesus Christ is also killed. Now simultaneously, the father of Jesus Christ, Joseph, also has a dream in which he is warned that people are coming to kill the infant Jesus Christ. Therefore, he should leave that place and immediately move to Egypt. And in the dead of the night, Joseph and Mary take this newly born child and move to Egypt till they get the information that Herod has been killed or Herod has died. This is the description in Matthew. Now, let us go on to Luke. What does it tell us? Now, the second chapter of Luke tells us regarding the events which took place immediately after the birth of Jesus Christ, and it tells us regarding 12 years after the birth of Jesus Christ. There is no mention of Herod, no mention of any dream, no mention of any warning, no mention of wise people going to find out that child, and there is no urgency of leaving the place and moving to Egypt in the dead of the night.
that story is entirely different. Let us look at it. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him. Now here, first thing that has to be considered is that Bethlehem and Nazareth, they are at a very large distance from each other within Israel. And in those days, when the means of transportation were not very rapid, were not so advanced, traveling with a woman in advanced stage of pregnancy is highly improbable. But in any case, the narrative still is at a very large variance as we compare it with Matthew. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Now here, after the birth, the child is put in a manger. There is no such reference in the Matthew Gospel which we earlier studied. Then the narrative entirely varies. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid." So in this story, there are shepherds to whom an angel appears and tells them that a child has been born, which is going to be the king of the region. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying. So it's not only one angel, there are a very large number of angels which are appearing there, and they're not appearing to wise men, they're appearing to shepherds. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. So here, baptism is taking place. There is no hurry, there is no such decree of killing all the children, all the boys, and everything is very peaceful. Further it says, when Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Now here the migration is to Nazareth and not to Egypt. There is no reference of that hurried migration to Egypt. Here everything is very peaceful. The child goes to his own people and grows up there, becomes a healthy child. So till 12 years, there is no such incidents mentioned in Luke, which was mentioned in Matthew. जी, तो जैसा आपने देखा, यीशु ने कौन सी जगह जन्म लिया? मैथ्यू बेथलेहम, लूक बेथलेहम। अब नीरजत्री जी कहते हैं कि मार्क के अनुसार मैथ्यू नाजरत में पैदा हुए। ऐसा ही है। ये मेरा ओपन चैलेंज है नीरजत्री जी और उनके पूरे फॉलोवर टीम को कि मेरे को मार्क के गॉस्पेल से एक भी जगह दिखा दें जहां पे ये लिखा हो कि यीशु ने नाजरत में जन्म लिया। और दूसरी उनकी झूठ, जॉन के हिसाब से गलील में जन्म हुआ यीशु का। सही में ऐसा ही है? नहीं, फिर से बहुत सारी लीप अप होती है। इस पे भी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि मेरे को मार्क और जॉन में से वो मेरे को दोनों में दिखा दें कि लिखा हो कि यीशु ने नाजरत और गलील में जन्म लिया। अब इन्होंने जो सवाल उठाया कि मार्क के अनुसार क्या ये नाजरत, ये तो नासरी है, ये तो नाजरत है, तो इसका जवाब हमें मैथ्यू के अंदर मिलता है। जब हम मैथ्यू पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 2, तो उसमें हमें पता चलता है कि जब जोसेफस मिस्र से वापस आया तो वह यरूशलेम जाने से घबराया, तो खुदा से चेतावनी पाके वो नाजरत देश को चला गया। और वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, यह इसलिए हुआ ताकि वो भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गई पूरी हो कि वो नासरी कहलाएगा, जैसा मार्क के गॉस्पेल में हमें दिखता है। अब जॉन के गॉस्पेल में उसे गलील से क्यों कहा गया? बहुत ही बचकाना सवाल है और बहुत ही अज्ञानतापूर्ण सवाल है। चलें इसको देखते हैं। जब हम देखते हैं लूक 2:4, लूक चैप्टर 2 वर्स 4, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, सो यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। तो नाजरत कहाँ पर है? गलील के अंदर। इसीलिए यीशु को जॉन के गॉस्पेल में गलील से बताया गया। अब
इन्होंने नेक्स्ट कहा कि मैथ्यू और जो लूक है इसके अंदर बहुत डिफरेंसेस है। जब यीशु पैदा हुआ उस समय पे सही में ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलें देखते हैं। मैथ्यू के अंदर हम जब देखते हैं हमें लगता है अरे कितनी ब्रूटैलिटी हुई थी, कितना ये हुआ था, जो हकीकत में हुआ था। यीशु ने बर्थ लिया तो उस समय इतना वो हुआ। और लूक में हमें दिखता है सब कुछ शांत है, कुछ भी नहीं है, नीरजत्री जी के अल्फाजों में। तो क्या ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं? नहीं, ये बातें आपस में एकदम भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। आपको कॉन्ट्रडिक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो को No, but I want to talk about the Gospels. What's your name? Rachel. Hey, Rachel. They're not necessarily eyewitness accounts. They're written in the third person. And the reason why we have the names Matthew, Mark, Luke, and John is thanks to the Catholics putting those labels on there. So I guess I don't understand why you say they are eyewitness accounts. Why do I think they're eyewitness accounts? Right. Because they contain eyewitness data. Like, for example, the Gospel of John, there are 59 eyewitness details in that document called the Gospel of John that could only have been known by an eyewitness or somebody who knew an eyewitness. Okay, is it possible that someone could have just been writing a story? Well, then you'd have to discount all the other evidence that this doesn't appear to be a story. It appears to be a historical account. From the Bible, right? The Bible is writing about, like, Mark is the first gospel that was written. And Probably. Some think Matthew may have been written first. Most scholars say Mark was written first. So we'll go with the general consensus, I guess. And then they say maybe Matthew and Luke used a lot of Mark. That's why there's a lot of coinciding events. And if you ever read the Gospels horizontally, where you compare each resurrection account, there seems to be a lot of contradictions, and it's not just an eyewitness. What would those problem. contradictions? Well, for example, I think in Mark, the ladies go to the tomb, and Jesus isn't there, and an angel tells them to go tell the people, but they don't. It just ends, and then something else is added on about snakes. And then Matthew, he goes ballistic and says there's angels and earthquakes and everything at the resurrection. And they tell her to go tell them to go tell the disciples. And they do this time. Luke reins it in a little bit. And he says the stone was already rolled away. And the angel is sitting on the tomb. Or I don't have this exactly correct. But it's the gist. And then John, being the beloved disciple, made himself, or whoever wrote it, made himself get there first before Peter. And I don't know, there's just a lot of contradictions. How are those contradictory? I don't see them contradictory. I see them complementary because they're written by different people telling their perspectives on. How are they contradictory? How did Luke miss the earthquakes and the angels? That seems Well, like a big detail. if he doesn't report an earthquake, that doesn't mean it didn't happen. It doesn't mean it did. No, but it's not a contradiction. Well, Like, for example, if somebody came into this, some reporter came into this room tonight and said Frank Turek gave a presentation, that would be true. And if somebody else came into this room and said Frank Turek spoke and so did Dr. Ben Gates, that would be true as well. That would be complementary. That would not be contradictory. जी, तो जैसा आपने इस वीडियो के अंदर देखा कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ट्रडिक्शन में फ़र्क, आई होप आप समझ गए होंगे। चलें हम इसका आंसर देते हैं। जो मैथ्यू है उसने बीच की जो स्टोरी है वो नहीं बताई, जो एक यहूदी परिवार में करना ज़रूरी है, खतना और खुदा के सामने उसको लेके जाना, उसका बलिदान, उसके लिए बलिदान चढ़ाना जो ज़रूरी है, जो मैथ्यू ने नहीं मेंशन करा, जो लूक ने मेंशन करा। लूक ने उस पीरियड के बीच की, उस पीरियड की बात बताई जो यीशु के जन्म से और हेरोद के आज्ञा पास करने के बीच का जो पीरियड था, उस पीरियड की बात लूक मेंशन करते हैं। हमको ये बात कैसे पता चलती है? जब हम देखते हैं चैप्टर 2 गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, तो हमें पता चलता है वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है
कि हेरोद ने गलील और उसके आसपास के 2 साल और उससे छोटे बच्चों को मरवा डाला। इसका मतलब ये है कि उसे ये बात समझने में टाइम लगा कि जो विद्वान उसके पास आए थे उन्होंने उसे धोखा दिया, और इतना समय काफी है यूसुफ ऑफ मरियम के पास कि वह मूसा की व्यवस्था के अनुसार सारे कार्य करें और फिर मिस्र को भी चले जाएं। चलें अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनके नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया गया, 3 दिन बाद उन्होंने फिर प्रकट होना था, ये बाइबल में जो गॉस्पेल्स हैं वो इसके बारे में क्या बताते हैं। और यहाँ आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में जहाँ पर गॉस्पेल कहा जाता है, गॉस्पेल ट्रुथ कहा जाता है, उसका अर्थ है कि गॉस्पेल इतने सच्चे हैं कि सारे के सारे सच की एक तरह से कसौटी माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले लेते हैं जो जॉन वाला जो गॉस्पेल है, उसके अंदर क्या आता है। सप्ताह के पहले दिन अलग सुबह अंधेरा रहते मरियम मगदलीनी कब्र पर पहुंची और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह दौड़कर शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास जो यीशु का प्रिय था पहुंची और उनसे बोली, वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें नहीं पता कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। फिर पतरस और वह दूसरा शिष्य वहां से कब्र को चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, पर दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले जा पहुंचा। उसने नीचे झुककर देखा कि वहां कफन के कपड़े पड़े हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। तो जॉन का ये जो गॉस्पेल है वो आपको बता रहा है कि जब मरियम मगदलीनी वहां पहुंचती है तब तक जीसस क्राइस्ट की जो लाश है वो वहां पर नहीं है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आई है। अब यही विवरण जो अगला गॉस्पेल है मैथ्यू का, उसमें क्या है वो देखते हैं। सबके बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई। क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। तब स्वर्गदूत बोला और उसने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम यीशु को खोज रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह यहां नहीं है। अब आपको इन दोनों गॉस्पेल्स में 4 तो बिल्कुल मोटे मोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक ये कि जॉन बता रहा है कि सिर्फ मरियम मगदलीनी गई थी। मैथ्यू ने एक और लेडी ऐड कर दिया कि एक तो मरियम मगदलीनी थी, दूसरी एक और मरियम थी साथ में। दूसरा पॉइंट कि जो जॉन है वो किसी स्वर्गदूत की, किसी एंजल की, किसी फरिश्ते की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैथ्यू में एक फरिश्ता, एक एंजल, एक स्वर्गदूत आ जाता है। अब देखिए इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। या तो ऐसा है कि जो एंजल हैं, फरिश्ते हैं, वो रोज प्रकट होते रहते हैं, हर रोज आते रहते हैं, तो इतनी छोटी मोटी घटना उसको मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जॉन ने इसको मिस कर दिया, लेकिन मैथ्यू इसके बारे में बता रहा है। अच्छा, तीसरी चीज, भूचाल आया है। ये भूचाल जॉन को नहीं फील हो रहा, लेकिन मैथ्यू को फील हो रहा है। तो क्या भूचाल भी रोज आते रहते थे वहां पर, या एक दिन में 100-200 भूचाल आते थे? फिर वहां जो जॉन है वहां पर कोई सिपाही नहीं है कब्र के आसपास, लेकिन यहां पर सिपाही बैठे हैं जो थर थर कांप रहे हैं। तो ये आपको ये जो अंतर है दोनों में क्लियर करते हैं कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जिन्हें जोड़कर इनकी मार्केटिंग की जाती है। लेकिन अभी इतना नहीं है, 2 गॉस्पेल्स और हैं, उनमें भी इसी के बारे में रेफरेंस है, तो उसे भी चेक करते हैं। अगला गॉस्पेल है मार्क। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गईं। वे आपस में कह रही थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ है। फिर जब वे कब्र के भीतर गईं तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गईं। तो ये तीसरे वाले में एकदम से नई कहानी आ जाती है जो पिछले दोनों से ही मैच नहीं कर रही। यहाँ पर एक लेडी नहीं आ जाती है सलोमी नाम की, जो पहली 2 में कहीं नहीं है।
फिर वो आपस में बात भी कर रही हैं कि अगर अकेली मरियम थी तो बात नहीं कर सकती थी, ज़्यादा है इसलिए आपस में बात कर रही हैं। वहाँ एक में पत्थर की कोई बात नहीं हो रही थी, दूसरे में पत्थर स्वर्गदूत ने लुढ़काया था, यहाँ पर पत्थर पहले से लुढ़का हुआ मिलता है। वहाँ पर कोई युवक नहीं था, यहाँ पर एक युवक आके बैठा हुआ है। शायद चौथा गॉस्पेल इसका समाधान कर दे, उसे देखते हैं। ल्यूक क्या बताता है? सप्ताह के पहले दिन अलग सुबह वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आईं। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर चली गईं, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। जब वे इस पर अभी उलझन में ही पड़ी थीं कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने दो व्यक्ति आ खड़े हुए। अब यहां ध्यान दीजिए, वहां पर एक युवक था जो बैठा था, यहां पर दो युवक चमचमाते वस्त्र पहनते हुए इनके पास आते हैं। डर के मारे उन्होंने धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थे। उन दो व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। याद करो, जब वह अभी गलील में ही था उसने तुमसे क्या कहा था। तो 4 गॉस्पेल्स, 4 चेले हैं इस जीसस क्राइस्ट के, चारों ने लिखा है उसके बारे में अपनी अपनी किताब में। ये किताब या तो गॉड द्वारा लिखी गई है या गॉड की प्रेरणा से लिखी गई है, लेकिन इसमें इतनी सारी गलतियां हैं कि आप कभी भी ये विश्वास नहीं कर सकते कि एक ही कहानी के बारे में, एक ही घटना के बारे में बता रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिजरेक्शन अकाउंट में डिफरेंसेस, जब मैंने बाइबल पढ़ी और मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, जब मैं पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ता हूँ, तो जब मैंने चारों गॉस्पेल पढ़े तो मेरे अंदर ये सवाल था कि इतने डिफरेंसेस क्यों हैं। लास्ट के क्वेश्चंस के अंदर इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट हैं? क्या ये हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नीरज अत्री जी थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करते तो उनको पता चल जाता, लेकिन बहरहाल उन्होंने जहाँ से ये कॉपी पेस्ट करे, उन्होंने नहीं समझा कि मैं इसका आंसर देखूं। हम इस चीज़ को देखते हैं। मैथ्यू, मार्क और जॉन हमें मरियम मगदलीनी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ी और औरतें जुड़ती जाती हैं। तो ये हुआ क्या? और लूक के अंदर औरतें हैं लेकिन उनका नाम नहीं, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ पे 2 औरतों का ग्रुप था। पहली तो मरियम मगदलीनी और उसकी साथी मरियम, जैसा हमने देखा, मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की माता मरियम और भी अन्य। और एक ग्रुप था जोअन्ना और उसकी दोस्तों का। जो मरियम मगदलीनी वाला ग्रुप था वो जॉन मार्क के घर पे था, जहाँ पे उन्होंने लास्ट सफ़र करा था, वो वहाँ से आए थे। और जो जोअन्ना वाला ग्रुप था वो मोस्ट प्रोबेबली हेरोद का जो रेजिडेंशियल एरिया था वो वहाँ से आए थे, क्योंकि जो जोअन्ना का पति था वो हेरोद के यहाँ एक अच्छे पोस्ट पर था। तो ये 2 ग्रुप्स थे वहाँ पे। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। अब जब लूक का गॉस्पेल देखते हैं तो हमें जोअन्ना का जो ग्रुप था उसके बारे में पूरी डिटेल मिलती है। वहाँ पे लिखा है कि वे सारी की सारी स्त्रियां अपोस्टल्स और प्रेरितों के पास गईं, लेकिन जब हम मैथ्यू, मार्क और जॉन पढ़ते हैं तब क्या हुआ? हाँ, हम देखते हैं मैथ्यू में जब वो रास्ते में ही थी तो उन्हें भूकंप महसूस हुआ और पत्थर हटा मिला। पत्थर, स्वर्गदूत उनके सामने नहीं उतरा। जब हम ग्रीक में जाके इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्वर्गदूत था वो मरियम और उसके ग्रुप के आने से पहले ही वो पत्थर हटा चुका था। और जब मरियम ने वो पत्थर हटा दे तो वो डर गई और कब्र पे जाने से पहले ही वह घबरा के अपोस्टल्स के पास भाग गई और उसे लगा कि यीशु का सब चुरा लिया गया, जैसा हम जॉन के अंदर पाते हैं कि उसने अपोस्टल्स से क्या कहा। जो मैथ्यू के अंदर जो स्टोरी है उसमें स्वर्गदूत किससे बात कर रहा है, और मार्क के अंदर तो हम देखते हैं जो उसके साथ की और स्त्रियां थीं उन्होंने ये कंफर्म करना ज़्यादा सही समझा कि हम जाके देखें उस कब्र के अंदर कि क्या माजरा है, क्या केस है। जब वो पहुंची तब उन्होंने उस स्वर्गदूत की बात सुनी। याद रखें, मरियम वहां नहीं थी। मरियम घबरा के अपोस्टल्स के पास दौड़ गई थी और उन्हें बताने। फिर उसके बाद कुछ और स्त्रियां गईं, लूक के गॉस्पेल में हमें पता चलता है। तो
क्या इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, एकदम भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, जैसा आप देख चुके हैं वीडियो के अंदर, और आई होप आप समझ भी गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Further, they say that the entire Bible is word of God and there is not a single word which can be rejected as falsehood, but more so in case of gospel. Now, these four gospels are Matthew, Luke, Mark and John. Now, according to Christian theology, all these four disciples of Jesus Christ were always accompanying him wherever he used to go. Therefore, their information regarding the life and events of Jesus Christ are absolutely true and they have been documented in these four documents. And if we have to learn about Jesus Christ, then this is the best place to look for. The missionary setup which is present in our country has always been thrusting down our throats that Jesus Christ is a historical figure, whereas the deities which are revered by Hindus like Ram, Krishna, Hanuman, Devi Saraswati, all these are mythological figures who were never existing, who were not historical figures. Now, if we have to find out whether Jesus actually was a historical figure, the best place to look for that is into the Gospels, and that is what we are going to do today. The first thing that we are going to today discuss is the year in which Jesus Christ is supposed to have taken birth, if there ever was a Jesus Christ. Now, the first Gospel, Matthew, tells us that Jesus Christ took birth in 3-4 century BCE. Now, none of these Gospels are chronologically placed. That means they don't tell us that this was the date or this was the year in which Jesus Christ was born. We have to look or search for specific phrases from which we can gather this information regarding historicity of Jesus Christ. And this is what we are going to follow today. Let us look at Matthew regarding this particular claim that Jesus Christ took birth in 3-4 century BCE. This particular section of Bible is from the Gospel Matthew. What it states is, "Now when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, take the young child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the young child's life are dead." Then he arose, took the young child and his mother, and came into the land of Israel. Now, this particular extract is talking about the father of Jesus Christ, who was Joseph, that he saw a dream. Now, if we compare this story with the story of Lord Krishna, who was born in Mathura, we find parallels between them. There the story was that the king Kans wanted to kill all those newborns who had taken birth around the birth of Lord Krishna. Therefore, he had sent his emissaries into different parts of India to kill all those infants. This story has been borrowed or copied from Mahabharata and has been added into Bible. That is the first impression that we actually get, because Bible is later to Mahabharata by at least 3000 years. Here the Bible is claiming that the father of Jesus Christ, that is Joseph, saw in a dream that those people who wanted to search out and kill the infant child have died because they had been ordered by King Herod. The king has died, therefore the people are not searching for Jesus Christ any longer. Now what we are going to do is we are going to corroborate this statement with the historical evidences. History tells us that there actually was a Roman king by the name of Herod, but his biographers tell us that this particular king had died in 4th century BCE, which means the birth of Jesus Christ could not have taken place later than this date, as it has already taken place since it is mentioned in Bible. Now, how do we verify this? We can look into the second gospel. Let's move on to that. The second gospel is Mark. It unfortunately does not tell us anything regarding the year in which Jesus Christ took birth. So we will move on to the next gospel, which is Luke. The second chapter of this Gospel of Luke tells us regarding birth of Jesus Christ. Let us go through it. It says, "And it came to pass in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria, so all went to be registered, everyone to his own city." Now, this particular Gospel of Bible tells us that there was going to be a census which was going to take place when Jesus Christ was about to be born. Mary was pregnant, and this census had to take place during the rulership of Augustus Caesar.
and during that time Quirinius was the governor of Syria. Now let us try to compare with actual historical documents. According to well-documented history, this census, which was to take place during the governorship of Quirinius in Syria, this census had taken place in 6th century AD or 7th century AD. Which means if we try to compare these two Gospels, Matthew and Luke, there is a gap of 11 years regarding their claims of Jesus Christ's birth. Obviously, both of these cannot be true. There is contradiction, a glaring contradiction between these two. Let us move on to the next Gospel. The fourth Gospel is John, but unfortunately, it also does not give us any information regarding the year in which Jesus Christ had taken birth. So, out of these four Gospels which are available to us, which according to church have every word written by God, are having contradiction which is so glaring that something as basic as the birth of Jesus Christ has a gap of 11 years between them. इसके अंदर नीरजत्री जी कुछ इस प्रकार कहते हैं कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जो हेरोद के बारे में लिखा गया है वो 4 AD में मर गया, और जो लूक के अंदर लिखा है क्रूनियस के बारे में वो 6 और 7 AD में सीरिया का गवर्नर था। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगा। ये लिखा है लूक चैप्टर 2 वर्स 1 से, उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्रूनियस सीरिया का हाकिम था। राजा हेरोद के मरने में और क्रूनियस के गवर्नर बनने में बीच में बहुत लंबा समय टाइम गैप आता है। तो यीशु का जन्म कब हुआ, ये एलिगेशन आप सुन चुके हैं। चले हम जरा पहले ये देखते हैं। इसके ऊपर एक और सवाल ये उठता है, क्या लूक भूल गया, क्या लूक ने गलती करी लिखते समय, या लूक ने जानबूझ के कुछ और लिखा। चलें सबसे पहले ये देखते हैं क्या लूक ऑथेंटिक था अपनी लिखाई के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो लूक को A1 हिस्टोरियन की कैटेगरी में रखते हैं, फर्स्ट सेंचुरियस का। वो लूक और जोसेफस को बराबरी पे रखते हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं। मेरा इन बातों से ये मतलब नहीं कि हम एक रिलीजियस टेक्स्ट को एक हिस्टोरियल टेक्स्ट के इक्वल रख रहे हैं। मैं लोगों की राय बता रहा हूँ और वो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे, वो ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं लिखने की। तो उनमें से हमारे पास कुछ नाम हैं। सर विलियम रैमसे, ये दुनिया के बहुत मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। कॉलिन हैमर, ये एक हिस्टोरियन रह चुके हैं। प्रोफेसर सैविन वाइट, और भी बहुत सारे अन्य नाम हैं जो लूक को A1 हिस्टोरियन की लिस्ट में रखते हैं फर्स्ट सेंचुरी का। क्या लूक ने गलती करी? नहीं, लूक ने कोई गलती नहीं करी। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऊपर। हो सकता है क्रूनियस 2 बार सीरिया का गवर्नर बना हो, एक बार 6 AD में और एक बार 8 BC में हेरोद के टाइम, क्योंकि उस समय का जो गवर्नर था हेरोद के टाइम का वो इतना विश्वास योग्य नहीं था। सबसे पहले सवाल आता है कि लूक ने ये क्यों लिखा। फर्स्ट, पहली जनगणना, क्या और भी जनगणना हुई थी? जब हम देखते हैं इतिहास में तो रोमन्स साम्राज्य में हर 14 वर्ष में जनगणना हुआ करती थी, और जो 6-7 AD से जनगणना हुई उससे पहले ये 8 BC में जनगणना हुई। इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि क्रूनियस 8 AD में जो जनगणना हुई उसमें भी सीरिया का गवर्नर हो सकता है उसकी पावर उस समय के गवर्नर के साथ बटी हुई हो क्योंकि वो विश्वासवर्दी नहीं था। हमारे पास बहुत अच्छे रीजंस हैं ये कहने के लिए कि क्रूनियस 2 बार सीरिया का गवर्नर बना हो, एक बार 8 BC के अंदर और दूसरी बार 6 AD के अंदर। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यीशु कभी जन्मे ही नहीं? ये बात कहना तो मूर्खता होगी, क्योंकि जब हम इतिहास में देखते हैं, इनफैक्ट नीरजत्री जी के हिसाब से जो वेल नोन बायोग्राफीज जिन्होंने लिखी, जोसेफस और टाइटस, उन्होंने भी यीशु का अपने बुक्स में जिक्र करा है। और भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं, 10 से ज़्यादा हिस्टोरियंस के नाम मुझे पता हैं जिन्होंने
यीशु का नाम लिखा है अपने इतिहास की पुस्तक में। तो इस कंक्लूजन से ये कहना है कि यीशु तो कभी जन्मे ही नहीं, वो तो कभी पैदा ही नहीं हुए, ये पूरी मूर्खता है। आशा करता हूँ नीरज अत्री जी को उनके जवाब मिल गए होंगे और अब समय है उनसे कुछ सवालात करने का। उनसे और उनके जितने भी शिष्य हैं जो अपने आप को उनका शिष्य घोषित करते हैं या कहते हैं, चलें हम उनसे सवाल करते हैं। हम देखने जा रहे हैं क्या वेदों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। चलें इसको देखते हैं। वेदों के अनुसार दुनिया को या पृथ्वी को किसने बनाया? चलें इस पे थोड़ा हम नजर डालते हैं। वेद, ऋग्वेद मंडल 2 सूत्र 13 मंत्र 5 के अनुसार इंद्रा ने पृथ्वी को बनाया। अब जरा हम नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 82 मंत्र 1 और यजुर्वेद अध्याय 17 और मंत्र 25 के अनुसार विश्वकर्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। चले अब हम एक और देखते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 190 और मंत्र 3 के अनुसार दातर ने हेवन, अर्थ, सन और मून को बनाया। ओके। अथर्ववेद खंड 9 सूत्र 5 मंत्रा 20 के अनुसार पृथ्वी अजा गॉड की ब्रेस्ट है। ओ, तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट हैं, यहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स के नाम हैं और ये सारे वेदास से हैं। अब मैं आशा करता हूँ इस सवाल के साथ कि हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। नीरज अत्री जी जरूर इसका जवाब देंगे। चलें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।